Hello, candidates, and welcome to Government Crackers. So I'm back with the second part of the series. जैसे मैंने आपको बताया था that we are covering the complete maximum possible questions that can be asked into FCAT 1 2021 examination. So first part, all those who have not seen that first part, you can go and see the first part, which actually deals with your reasoning section, where we giving you the concept also and the practice material also. In the second part, we'll be covering the remaining sections for the reasoning section and also the tips and strategy for the reasoning section. All right, so before I proceed, you can watch this particular series only on Government Crackers, or else you have to visit www.governmentcrackers.com and you can be the site membership, as membership is going free of cost these days. So you can be a member and get all the notifications and updates and watch this particular video over there as well. All right, let us proceed. Now, before I move on, I'd like to tell you that there are important notes that has been already released, that is complete Air Force notes जो already मैंने यहाँ पे prepare करके डाले थे, and there's one very good strategy for FCAT, that is toppers technique and 5 secrets which can actually create a difference from you and others. So बहुत important दोनों ही videos हैं, already channel पे पड़ी हुई हैं, आप लोग को जाके YouTube channel पे search करना है Government Crackers and you can watch these videos which are already available over there. Now, so again, जैसे मैंने बोला, we are going to do a quick revision because these topics are assured for the examination and the aim would be to score around 95% and above. अगर अभी भी concepts clear नहीं है, because we are receiving lot of queries from students, बहुत सारी आपने preparation की है मगर अभी भी कहीं अगर कोई concepts clear नहीं है, so this is a revision series जहाँ पे you all can revise. Apart from this, सिंस एसएसबी के लिए भी बहुत लोग आप प्रिपेयर कर रहे हैं, सो एफएसबी के कोर्सेज भी देयर आर अवेलेबल एट अ वेरी डायनेमिक प्राइस, दैट इज 999 ओनली, where you'll be getting video lectures also, ebooks also, and lot of practice materials also at a very nominal rate. So for that also you have to visit this website, which offers you lot more powers than as compared to restrictions which are present on the आप, ठीक है. सो यहाँ पे आप मोर फ्लेक्सिबिलिटी और मोर रिलायबिलिटी है, तो ये आप विजिट कर सकते हैं वेबसाइट को. नाउ प्रोसीडिंग टू द टॉपिक्स, जैसे मैंने बोला कि वी ऑलरेडी कवर्ड लॉजिकल वेन डायग्राम yesterday, पैटर्न कंप्लीशन yesterday एंड एनालॉगी इन पार्ट 1. तो जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा है वो पार्ट 1 जाके देख सकता है. आज हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं रिमेनिंग टॉपिक्स को, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ इमेजेस, इमेज सीरीज, डॉट पिक्चर्स एंड एम्बेडेड क्वेश्चंस को. ठीक है, एक एक करके अब इनके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं. सो लेट्स प्रोसीड. नाउ पहले बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इमेजेस की. ठीक है, सो इसमें क्या करना है, ऑलरेडी देयर बी 2 डिफरेंट कैटेगरीज आपको क्लासिफाई करना है कि इमेजेस बेसिकली कहाँ आती हैं. अगेन इसमें होता है आपके 5 क्वेश्चंस आते हैं, 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स, सो टोटल आपका ये हो जाता है 15 मार्क्स की आपका पूरा क्वेश्चन का सेट बनता है. नाउ अब यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, इसमें होता यह है कि क्लासिफिकेशन ऑफ सीरीज में, जैसे ये पार्ट है इसका क्लासिफिकेशन का, इसमें आपको क्लासिफाई क्या करना होता है वो देखते हैं. आपको 5 फिगर्स दिए होते हैं, 1 2 3 4 5. इन पांचों में से आपको बताना होता है दैट विच पर्टिकुलर फिगर इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट 4. चारों में से, पांचों में से एक कोई ऑड वन आउट है. तो क्लासिफिकेशन को आप बेसिकली ऑड वन आउट भी बोल सकते हैं. तो ऑड वन आउट में आपको बताना है ना, यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना होता है. बेसिकली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, इजी होते हैं, बट साइमल्टेनियसली उतनी ज्यादा मिस्टेक्स भी इस पर्टिकुलर सेक्शन में होती हैं. इसीलिए यू हैव टू एक्चुअली ऑब्जर्व इवन वेरी माइन्यूट चेंजेस ऑल्सो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर रीजनिंग सेक्शन. ठीक है, सो अब यहाँ पे आप फिगर 1 देख लीजिए. नंबर ऑफ डॉट्स और लाइन्स इन दिस पर्टिकुलर शेप ऑल्सो, कितनी लाइन है. सो यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, यहाँ पे ये 3 हो गया है, देन इट हैज बिकम 4, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 हो गए हैं, नाउ इट इज 4. तो एक पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है. 5 था तो 2 लेस हुआ, 3 हुआ. 4 था तो ये लेस, ये आपका बढ़ गया, यहाँ पे 6 हुआ. उसके बाद ये, तो आप यहाँ पे देखिए जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा फिगर ए, बिकॉज यहाँ पे 2 रीजन है इसके. फर्स्ट जो आपका रीजन होगा वो होगा फर्स्ट रीजन यहाँ पे ये है कि जो पिन है दैट इज इक्वल इन नंबर टू द नंबर ऑफ साइज ऑफ द
मेन फिगर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्रॉस लिंक भी बन रहा है, एक फिगर छोड़ के आप देखते हैं यहाँ पे लिंक बन रहा है, और यहाँ पे डॉट से भी आपका लिंक बन रहा है। नाउ सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। एरोज को अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप एरोज देखिए, इजीली यू कैन मेक इट आउट कि जो बाकी पिक्चर्स है इनमें जो एरो हेड्स है दैट आर ग्रेटर एज कंपेयर टू फिगर सेकंड, जहाँ पे आपको 4 ही एरोज दिख रहे हैं। तो ये आप देख के ही अलग कर सकते हैं। सो ये आपका बी हो गया, बिकॉज बाकी सब में इट्स मोर देन 5 एरो हेड्स, ठीक है। तो इस तरह से आपको नोट आउट करना है। नाउ फॉर योर प्रैक्टिस, ये मैंने कुछ इमेजेस दी हैं which you can practice. Definitely if you face any problem in any of the questions you can comment it and we are there to answer you out. आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं अगर आपको किसी में डाउट है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा। सो दीज आर द क्वेश्चंस जहाँ पे आप इसको ऑड वन आउट बोल सकते हैं या क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं। यू नीड टू क्लासिफाई कि कौन सा बेसिकली बाकी पिक्चर्स से मैच नहीं होता है, ठीक है। सो दिस कैन कम इन नॉन वर्बल फॉर्म ऑल्सो एंड इन वर्बल फॉर्म ऑल्सो। वर्बल फॉर्म में अगेन ये ऑड वन आउट के फॉर्म में आपसे पूछ लिया जाएगा, जहां पे 4 वर्ड्स दे दी जाएंगे या 5 वर्ड्स दे दी जाएंगे। आपको बताना होगा कि 5 में से कौन सा वर्ड मैच नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल इट में बी ए बी सी डी एंड जेड। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं देयर इज अ कंटिन्यूएशन, सीरीज, कॉन्जिक्यूटिवनेस, बट जेड एक आउट ऑफ द बॉक्स आ गया। सो दिस इज हाउ यू नीड टू एलिमिनेट। तो ये आपके हो गए वर्बल फॉर्म। नॉन वर्बल विल बी these picture forms, और इसके 5 क्वेश्चंस आएंगे शॉर्ट। सो मेक श्योर 15 मार्क्स आपके हाथ में है इफ यू गेट द राइट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आते हैं हम इमेज सीरीज पे। इमेज सीरीज में अब अगेन ये 5 क्वेश्चंस आएंगे, 3 मार्क्स ईच, गेटिंग यू टोटल 15 मार्क्स। इसमें क्या करना है आपको, इसमें देयर विल बी पर्टिकुलर सीरीज, एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो हो रहा है, और आगे नेक्स्ट में कौन सा राइट आंसर होगा ये आपको बताना है डिपेंडिंग अपॉन द प्रीवियस प्रॉब्लम्स। तो इसमें आप देखिए किस तरह से रोटेशन हो रहा है। इसमें आपको अगेन चेक करना है इधर एंटी क्लॉकवाइज है या वो इन्वर्टेड फॉर्मूला चल रहा है या मिरर इमेजेस का फॉर्मूला चल रहा है या क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, अप राइट डाउन है, राइट है, लेफ्ट है। ये आपको सारा इसमें मैच आउट करना है। तो अगर आप इन फिगर्स की रोटेशन को देखें तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है ऑल्टरनेटिव ब्रैकेट्स का। बहुत ही पेट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामिनेशंस में कई बार रिपीट हो चुका है। सो यहाँ पे देखिए 1 2 3 1 2 3, ये जो आर्क्स हैं ये इन्वर्टेड सीक्वेंशियली 2 पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहे हैं। वन इज इन्वर्जन, सेकेंड इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इन्वर्जन हो रहा है। तो इस तरह के एट टाइम्स जब क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करना होता है तो यहाँ पे डुअल जो है वो राइट लग जाता है। तो ये आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करना होगा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए। अगेन इस पैटर्न में देखिए यू नीड टू चेक आउट, ठीक है। अब आप इसको ध्यान से देखिए और ऑब्जर्व करके बताइए कि क्या राइट आंसर हो सकता है। कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको लग रहा है वेरिएशन। मैं आपको इसका भी आंसर बताती हूँ, इसको भी हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या ये एंटी क्लॉकवाइज टर्न हो रहा है, क्या ये क्लॉकवाइज टर्न हो रहा है, इन्वर्टेड हुआ है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। यू नीड टू चेक आउट ऑल दीज फैक्टर्स, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे राइट आंसर होगा बी। बी क्यों होगा सेकेंड, बिकॉज जो रीअपियर है, सिमिलर फिगर रीअपियर्स इन एवरी सेकेंड स्टेप। आप मैच करके देख सकते हैं यहाँ पे। एंड हर बार फर्स्ट फिगर जब रीअपियर होता है तो एलिमेंट्स जो हैं उनकी भी पोजीशन चेंज होती है। तो यहाँ पे 2 पैटर्न फॉलो हो रहे हैं ऑल्टरनेटिवली, तो ये भी आपको देखना होता है। एट टाइम्स जैसे मैंने बोला सिंस इट्स कॉम्पिटिशन, तो उसको कॉम्प्लिकेट करने के लिए या कंफ्यूज करने के लिए ऑल्टरनेट पैटर्न्स बहुत ही कॉमन है rather than बैक टू बैक पैटर्न्स में। तो आप ऑल्टरनेट कनेक्शन स्टैब्लिश करिए या बैक टू बैक स्टैब्लिश करके देखिए। नाउ फॉर सम प्रैक्टिस, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दे दिए हैं, आप इनको प्रैक्टिस करके यू कैन लेट मी नो अगर किसी में आपको डाउट है। वंस आपको कॉन्सेप्ट मिल गया तो इसमें क्वेश्चंस आपके गलत नहीं हो सकते, बट यस यू नीड टू वेरीफाई योर ऑब्जर्वेशन। स्पेशली ऐसे क्वेश्चंस में आपको वेरीफाई करना है, जैसे अगर मैं फर्स्ट फिगर की यहाँ पे बात करूं तो आपको किसी 2 एलिमेंट को एक साथ लेके चलना होगा और उनकी पोजिशन से क्रॉस वेरीफाई करना होगा कि जो भी पैटर्न आपने आइडेंटिफाई किया है क्या वो सिर्फ फिगर 1 पे एप्लीकेबल है या 2 पे भी एप्लीकेबल है। बिकॉज अगर वो किसी एक पे एप्लीकेबल है तो आपका ऑब्जर्वेशन जो है वो कहीं ना कहीं गलत भी हो सकता है। सो यू नीड टू अप्लाई द सेम कॉन्सेप्ट ऑन एटलीस्ट 2 फिगर्स टू क्रॉस चेक, ठीक है। तो ये आपको देखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
Coming to dot situations, very interesting question. 5 questions, 3 marks each, getting 15 marks. कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है. यूजुअली लोग यहाँ पे अगेन जैसे मैंने बोला कि जब आप इस तरह के किसी पर्टिकुलर फिगर को देखते हैं तो इल्यूजन का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से क्वेश्चंस का गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं. हियर यू नीड टू चेक आउट कि डॉट्स बेसिकली किन दो फिगर्स के बीच में आ रहे हैं. सो द ईदर यू ड्रॉ दैट, ईदर आप उसको कहीं भी मेंशन आउट कर सकते हैं कि क्या दो कंडीशंस फुलफिल हो रही है. ये कैसे सॉल्व करेंगे ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे इसमें देखते हैं. फॉर एग्जांपल here you can see 3 figures, that is square, triangle and circle. Now here जो फिगर फॉल आउट कर रहा है वो देखिए स्क्वायर, दिस इज समवट हियर. तो ये इस एरिया को आप शेड भी कर सकते हैं सो दैट यू नो कि आपका डॉट इस सर्कल में स्क्वायर में नहीं आ रहा. नाउ यू हैव ओनली 2 फिगर्स लेफ्ट, दैट इज सर्कल एंड ट्रायंगल. सो सर्कल और ट्रायंगल दोनों का एक कॉमन पोर्शन है जहां पे डॉट है. सो यू हैव टू सैटिस्फाई द सेम कंडीशन. ठीक है. सो हियर द राइट आंसर वुड बी सी. ठीक है. समझ आ गया किस तरह से कंडीशन को सैटिस्फाई करना है. नेक्स्ट यहाँ पे अगेन हम देखते हैं सर्कल को बिल्कुल आप शेड करके निकाल सकते हैं सो दैट यू आपका जो कंफ्यूजन है वो कहीं ना कहीं दूर हो जाए. तो ये आपने शेड आउट करके इसको निकाल दिया. नाउ यू हैव 2 फिगर्स लेफ्ट, दैट इज ट्रायंगल एंड स्क्वायर एंड बोथ हैव अ कॉमन एरिया जहां पे डॉट फॉलो आउट कर रहा है. सेम सिचुएशन आपको बाहर ढूंढनी है कि सर्कल वहां पे नहीं आना चाहिए, ट्रायंगल एंड स्क्वायर शुड बी देयर. तो ये आपका सीधे सीधे फिगर 1 में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है. रेस्ट आप जितने भी डायग्राम्स देखेंगे उसमें ये कंडीशन कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं है. ठीक है. सो आई होप आई एम वेरी मच क्लियर. सो जैसे मैंने बोला या तो आप फिगर देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दैट इज वेल एंड गुड. ईदर यू कैन शेड दैट पर्टिकुलर पोर्शन सो दैट आप इजीली चेकआउट कर सके कि डॉट कहाँ पे आ रहा है. सो दिस इज वन स्मॉल ट्रिक दैट यू कैन यूज आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए. नाउ आई एम गिविंग यू फ्यू क्वेश्चंस एंड यू कैन देन हैव अ प्रैक्टिस फॉर ऑल दीज. ठीक है. तो आप इनको प्रैक्टिस आउट कर सकते हैं. 1 2 3 4 5 6 मोर देन सफिशिएंट. अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आप इसके जैसे सिमिलर कितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. द इम्पोर्टेंट थिंग इज कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर किसी का भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ you can definitely let me know and we will come back with some more explanations in a better form and in a very detailed manner also. ठीक है. तो कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर करें. Also we have previous year books also, question papers also. last minute last 1 week है तो आप previous year papers लेके या EKT की अगर question bank लगाना चाहते हैं तो वो सारा मटेरियल आपको गवर्नमेंट क्रैकर्स पे मिलेगा. तो आप उसको लेके क्वेश्चन बैंक अगर आपको चाहिए तो वो आप ले सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज अबाउट योर एम्बेडेड फिगर्स. अगेन इसके 5 क्वेश्चन आते हैं, 3 मार्क्स ईच. नाउ इसमें क्या होता है, देयर इज वन पर्टिकुलर फिगर, एम्बेड मीन्स छुपा देना. ठीक है. सो इस फिगर को कहीं हाइड कर दिया जाता है एंड यू नीड टू टेल कि ये पर्टिकुलर फिगर, ये एग्जैक्ट फिगर जो है ये कहाँ पे कौन से फिगर में आएगा. ठीक है. उसको इस तरह से डिजाइन आउट किया जाता है. सो यू नीड टू चेक कि आपका कंडीशन जो है वो कहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है. कैसे देखते हैं. जैसे फर्स्ट फिगर है, सपोज दिस इज द फिगर जो हमें चेकआउट करना है. नाउ वी कैन चेक डिफरेंट शेप्स. जैसे अगर हम इसमें चेक करें तो ये जो दोनों साइड में कर्व निकले हुए हैं ये नहीं हमें फर्स्ट में मिल रहा है, तो दिस कैन नॉट बी. इसमें तो ये पॉसिबल ही नहीं है, इसमें भी पॉसिबल नहीं है बिकॉज यहाँ पे प्लेन इमेजेस हैं. ठीक है. आपको ये भी देखना है कि यहाँ पे ये कंडीशन एक सेटिस्फाई हो रही है. वी हैव गॉट द कर्व्स बट अगेन ये जो डायगोनल लाइंस हैं दैट इज मिसिंग हियर. ठीक है. और ये यहाँ पे प्रेजेंट है, ये कट आउट एक दूसरे को कर रहे हैं. सो दिस अगेन कैन नॉट बी यूज्ड. तो यहाँ पे एक ही फिगर बेहतर है जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. ईदर दे आर इजी टू एलिमिनेट या फिर आपको कंडीशन को चेकआउट करना पड़ेगा. ठीक है. सो हियर द आंसर इज बी आंसर. सेकेंड, एक और क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करते हैं. अब इसमें बताइए ये कंडीशन कहाँ सेटिस्फाई हो रही है. सेम फिगर यू नीड टू चेक आउट. ठीक है. 1 2 3 4 क्या लग रहा है आपको कौन सा सेटिस्फाई हो सकता है. तो ये भी मैं अगेन आपको बता देती हूँ, उसके बाद आप मुझे सॉल्व करके बताएंगे. सो फिगर ए अगर आप इसको ध्यान से देखें तो फिगर ए इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है. देखिए ये डायगोनल आपको मिल गया, ये आपको यहाँ से ये पूरा पोर्शन मिल गया. तो ये देखिए एग्जैक्टली आपका फिगर यहाँ से निकल कर रहा है. अगर आप इसको किसी और में अप्लाई करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा. ठीक है.
तो इस तरह से इधर आप अपना फिगर ड्रॉ करके भी इमेज निकाल सकते हो। तो ये भी एक ट्रिक मैं कहूंगी जो आप यूज कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। नाउ दिस इज समवट फॉर योर प्रैक्टिस, आप इसको प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया हो, क्योंकि लोगों को अभी तक क्लियर नहीं होते डॉट सिचुएशन, स्पेशली वेन डायग्राम, इसमें ज्यादातर मिस्टेक्स निकल आते हैं। कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करिए और सिर्फ इन्हीं सेक्शंस की, जो भी मैंने क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करे, सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिए, यू विल इजीली क्लियर रीजनिंग सेक्शन। और जैसे मैंने हमेशा डिस्कस किया, मैं वो भी आपसे अभी डिस्कस करूंगी, दैट द स्ट्रैटेजी एंड ट्रिक्स टू क्लियर योर रीजनिंग सेक्शन एंड द कंप्लीट एफकेट एग्जामिनेशन ऑल्सो, वो अभी हम नेक्स्ट पे डिस्कस करेंगे। सो हियर आर द क्वेश्चंस, इनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जैसे मैंने बोला, बिल्ड योर कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग, किसी नए कॉन्सेप्ट पे मत जाइए, रिवाइज योर कॉन्सेप्ट्स। एंड अगर किसी ने इस तरह के क्वेश्चंस को नहीं प्रैक्टिस किया अब तक अपनी प्रिपरेशन में, सो यू नीड टू प्रैक्टिस ओनली सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन रीजनिंग। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। नाउ टिप्स की अगर मैं बात करूं, सो मैंने जैसे बोला कि पिक्चर्स को क्लियरली देखने की कोशिश कीजिए एंड थॉरली देखिए, बिकॉज ये सेक्शन जितना इजी है वहां पे इतना ज्यादा हमें कॉन्फिडेंस, या मैं कहूंगी ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो हमारी छोटी सी मिस्टेक से वी सेलेक्ट द रॉन्ग फिगर एंड इट रिजल्ट्स इनटू नेगेटिव मार्किंग, रीजन मीन हमारा सिलेक्शन रह जाता है। तो ध्यान से देखिएगा पिक्चर को एंड थॉरली देखिएगा। कभी भी क्वेश्चन को ओवर रीड मत करिए, ध्यान से देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, या फिगर को ओवर रीड करने की कोशिश मत देखिए। एक फिगर जो आपका सैंपल फिगर है उसको ध्यान से देख के उसके पैटर्न को समझने की कोशिश करिए। अगर किसी फिगर में आपको डाउट है, कंफ्यूजन है, देन डू नॉट स्पेंड लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज आपको टाइम मैनेजमेंट इक्वल देखना है। स्टार्टिंग में कोशिश करें कि 30-40 सेकेंड से ज्यादा आप एक क्वेश्चन पे नहीं रुक रहे हैं, बिकॉज ये टाइम आप यूटिलाइज कर सकते हैं बाद में, once you have visited the complete question paper। otherwise क्या होता है, लोग complete question paper भी visit नहीं कर पाते हैं। and last and the least is practice specific sets of questions, जो हमने डिस्कस करे 7 से 8 टाइप के क्वेश्चंस आपके रीजनिंग सेक्शन में आते हैं, यही क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आने वाले। तो जैसे मैंने बोला ऑलरेडी एफकैट में जो है आपका ये कोई पर्टिकुलर सेक्शनल कट ऑफ नहीं जाती, विच इज द बेस्ट पार्ट। यानी आप कोई भी 4 सेक्शंस टोटल होते हैं तो आप 3 की बदौलत भी इस एग्जामिनेशन को इजीली क्लियर कर लेते हैं, बिकॉज दिस इज द टाइम जहां पे यू नीड टू चेक आउट फॉर योर स्ट्रेंथ्स रेदर देन वीकनेसेस, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। अगेन इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर एफकैट 2, अगर आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, यू कैन स्टार्ट विद अस, वेयर विल बी गिविंग लॉट्स ऑफ स्टफ्स विद यू इन द कोर्स मटेरियल। Simultaneously you can prepare for combined courses also, that is serious, and you'll get lots of benefit with these courses that you can avail on governmentcrackers.com। so there are lot many other videos जो मैंने स्ट्रैटेजी हो गया, और मैंने आपको एयरफोर्स के नोट्स जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया, दैट आर ऑलरेडी अवेलेबल ऑन यूट्यूब चैनल ऑफ गवर्नमेंट क्रैकर्स, आप यहाँ से विजिट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड अ डेली करंट अफेयर्स सीरीज इन 10 minutes, सो दैट यू कैन सी, जहाँ पे डिफेंस पर्पज से स्पेशली करंट अफेयर्स आपको बताए जाएंगे, कितना डेप्थ होना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, एंड विल बी कवरिंग एवरी कैटेगरी। एंड द एम वुड बी कि आपको इंपॉर्टेंट factual concepts, facts and figures, सब कुछ 10 minutes में will be trying to cover up the complete series. Alright, so best of luck and we'll be back with more videos. Till then, Jai Hind.